Hello everyone. Today we are going to discuss about AAR S-type cyclocoupler used in Indian Railway. This is a very interesting topic, so you please listen carefully. There is a term written AARH. AAR means American Standard of Railroad. This is the full form of AAR. Now, this topic is now subdivided, or you can say what we have to learn: introduction, maintenance, and the overhauling. In introduction part, we will see how the CBC is introduced in Indian Railway. In Indian Railway, screw coupling is used in coaching stock as well as goods stock. Screw coupling is previously designed for 60 tons capacity, means it has very less capacity. Then the advanced screw coupling is introduced with 75 tons capacity. But screw coupling has some limitations. So, to overcome the limitations of screw coupling, CBCVC was introduced in Indian Railway with some advantages. First, high train load. High train load means every day load is varying. The train capacity is increased every time. Previously, 16 coaches are running at a time. After that, 18 coaches, then 21. Now, there is full load of 24 coaches running nowadays. So, high train load. Second one is automatic coupling. We need automatic coupling without any help of man. And the third one is the anti-climbing features. What do you mean by anti-climbing? Actually, if any accident takes place, coaches has the tendency to climb each other. But with the help of CBC, it has the anti-climbing feature. There is no climbing is possible because of no CBC doesn't allow any vertical movement. Now we are go to for next slide. This is the main components of CBC. They are mainly
four main components. One is, this one is called coupler head. The total item is called coupler head. Again, this one is main pin, which is fixed here to hold the knuckle. And now, for buffing, there is one single peg draft gear. Is there? There is two plates. One is a draw plate, another one is the buff plate. In between, elastoperic peg is placed with the help of a rod. There 9 pegs are there, 9 elastomeric pegs are there. These are the capacity of high up junction. The elastomeric peg has a tendency that if we press the certain pressure for certain time, its elasticity increases. So we use the elastomeric pegs in this portion. Then after this balance gap gear, you have a question in your mind. If one gap gear is also there, why it is needed for this? Then I am going to clear out the example, giving you the example. Actually, once the crane is started, means once driver starts the crane, something is pulling in this direction, some force tends to pull in this direction. Then the 9 pegs becoming tension. Once the driver applies the brake, means the force tends to go in this direction, means whole the 9 pegs is becoming compression. So when the driver start the case, the whole the 9 pegs become in tension. When he applies the brakes, all the 9 pegs is becoming compression. So some jerks will occur. Some jerks will occur in coach, passenger, ragging index become high. He doesn't feel the comfort. So for overcoming this balance gap gear is introduced. In this, there is one plague between this elastomeric pegs. 3 elastomeric pegs is behind and the 4 is above. With the help of this rod, the whole elastomeric peg is situated over there. Then again, the same example, when the drivers start the cranes, the 4 pegs becoming tension and this 3 is in compression because the pegs is in single rod, is placed in the single rod, and this is the fixed block. So 4 is becoming tension, then 3 is in compression. The same for when the driver apply the brakes, this 3 is becoming tension and 4 is in compression. So the jerks will very much minimize. Okay? So, right. Then the next slide. There are 5 components over there. There is subdivided in 5 more components is there. One is the vertical support. This is also called as supporting device. Supporting device which holds the CVC. The CVC rests in this portion
with the help of fourth compression spring. This is the second one is the manual uncoupling device. This is for couple or discouple the crane. Couple and discouple the knuckle. This is the front carrier plate which holds the gap gear. This also holds the gap gear. And this is the rear carrier plate which holds the balanced gap gear. Okay. Now go for another slide. Now there is some more parts is there. Some assembly is there. Let us see what is the assembly over here. This one is called knuckle. This is the very, very important part of this particular arrangement. This is knuckle thrower. This is already we discussed. This is knuckle pin, which is kept in this area. There is one lock is there for disengage or engage the knuckle. This is the rotary lift assembly, which is has the tendency, which is used for actually kept with rod, our uncoupling rod, which is kept with uncoupling rod, which is this one is rotary link assembly. This is combined with the uncoupling rod, which is the tendency when we uncouple or want to uncouple or couple, we use uncoupling rod. This is the tendency to come up and put the force the thrower to pull the knuckle outside. Okay, this is the salang block. This is salang block is situated in this. Salang block is situated in this portion with the headless pin of AKM5, which is for gaff gear combination, which is for gaff gear. If we use gaff gear, this to engage or disengage the gaff gear. That's why it is used. The headless pin is used here. Okay. After that, we're going through the next slide. In the animation view, this is the animated view. Now, the gaff gear sub-assembly. Already we discussed, there are 9 packs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 packs is there. There is one rod where gaff gear is placed, and there is one screw. This is the portion which is the packs is there, and another packs is there also. After that, balanced gaff gear sub-assembly. We already told you in previous slide. 3 is in this portion, and the 4 is in this portion. And there is one rod where we put the elastomeric pad in between, and this is the waste block which is situated here for opening. This is used for opening and closing the gaff gear in the pocket of the coach. Okay. Now vertical support. Vertical support is also known as supporting device. There is the 4 spring, 1, 2, 3 and 4. 4 compression spring is there.
one plate is there. There is one rear plate also. There are two bolts which is used in this position to lock the vertical support. Now manual coupling device. This is the manual coupling device whole thing. This one is the rod. This one is the manual coupling device rod. This one is the lock for handle. There is the bracket which holds this particular item. There is both the brackets to hold this item, and this one is kept here. So manual coupling device is all about. After that, we see the next slide. This is the front carrier plate. This is the front carrier plate which is used to hold the draft gear. There is some holes is there. Then we use the nut bolt with sizes 16 mm and 45. There is the rear carrier plate. The same bolt is there, 16 mm 45. Rear carrier plate of DBG, same bolt is used. This is a single arrangement of coupler, coupling and there is sub-assembly. This is the actual figure. This is the actual figure of the sub-assembly. There is the coupler body. Okay. There is the knuckle. There is the front portion of the coupler head. There is the draft gear. And this is the uncoupling device which is situated, put like this. There is the supporting device, vertical support. Now, because we can reason for switching the balance gap gear. Why you use balance gap gear? There is longitudinal jerks. To minimize longitudinal jerks, gap occurs in gap gear by going buck mode. To overcome this, we use this balance gap gear, which already discussed earlier slide. Now we can see the maintenance package. Maintenance is the very vital part in any machine to run safely. Maintenance is a very vital part. So one has to be very much sincere about the maintenance. Firstly, quick visual inspection every day. Visual inspection coupler head for any damage. There is a figure, there is shown surface crack on body. There is a surface crack over here shown. There is one surface crack on here. It is also shown. And this is the second picture. This is a knuckle jams. Jam knuckle pin. If we want अगर हम चाहते हैं कहीं पे हमें जरूरत पड़ जाती है कि नहीं यार मुझे नकल ठीक नहीं है, नकल को चेंज करना है, नकल जो है हमारे एक्चुअल उसमें नहीं आ पा रहा और जैम नकल गएगा तो फिर हम इसका जो है ये पिन हम नहीं निकाल पाएंगे और नकल हम निकाल नहीं पाएंगे जब तक ये पिन नहीं निकलेगा और गाड़ी हमारी थोड़ी देर के लिए वो हो जाएगी, गेन हो जाएगी, जिससे जो कि सही नहीं रहता है। तो हम जब भी जाम नकल देखें तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा और इस तरह से हम काम चेंज करके कपड़े हेड में नया नकल लगा के भी चलाएंगे। और ये अगर इस तरह से कोई सरफेस क्रैक है तो उसको भी हटा देंगे और यहाँ पे कोई सरफेस क्रैक है उसको भी हम हटा देंगे। ओके, तो हम कुछ मेंटेनेंस शेड्यूल क्या क्या है प्रैक्टिसेस वो उसके बाद हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। तो मेंटेनेंस शेड्यूल जो है हमारा उस पर हम लोग ध्यान देंगे।
मेंटेनेंस शेड्यूल्स क्या है? पहला मेंटेनेंस शेड्यूल कपलर हेड का क्या है, मेंटेनेंस शेड्यूल का सपोर्टिंग डिवाइस का क्या है, मेंटेनेंस शेड्यूल जो है हमारा ग्राफ गियर का क्या है, और मेंटेनेंस शेड्यूल हमारा मैनुअल अनकपलिंग डिवाइस का क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मेंटेनेंस शेड्यूल जो कपलर हेड का है वो क्या है। हमारा जो ट्रिप शेड्यूल होता है, मंथली शेड्यूल होता है, उसमें चेक टेल ऑफ कपलर, टेल जो है कपलर का, उसको हम लोग चेक करते हैं, विजुअली चेक करते हैं एक्सटर्नल डैमेज कोई है तो नहीं है, कंडीशन ऑफ वियर प्लेट की जो कंडीशन और सैंक की जो कंडीशन है उसको चेक करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं वियर प्लेट। अगर हम देखते हैं कि ज़्यादा उसमें घिसाव हो चुका है तो हम वियर प्लेट को चेंज कर देते हैं। इसके बाद हमारा हाफ ईयरली में हम क्या करेंगे, एवं जो भी चेक्स हैं उसको हम रिपीट करते हैं। रिपीट करने के बाद स्टील एरिया जो कपलर का रहता है, नकल का वहाँ पे मोलिकोड ठीक ताकि 2 IR और इक्विवेलेंट ड्राई स्प्रे लगा देते हैं। डू नॉट स्प्रे नहीं करते हैं नकल के लॉकिंग सरफेस को, और इंटरनल पार्ट्स में जहाँ पे लॉक वगैरह रहता है वहाँ पे हमें कोई भी तरह का लुब्रिकेशन अलाउड नहीं है, वो हम लोग स्प्रे नहीं करते हैं। उसके बाद हमारा रहता है ईयरली। ईयर में हमको क्या करना है कि 1 साल के बाद एवं चेक्स को रिपीट करना है कपलर हेड के। गैप जो है कपलर हेड और जॉ गैप का नो गोज गेज एक हमारे पास आता है, उसको देखते हैं कि कहीं नो गो गेज जा तो नहीं रहा है। उसके बाद फिर प्रोफाइल को गूगल से देखते हैं, और एक एंटी क्लिप चेक जो है अभी हम लोगों ने डिस्कस करा है उस करेंगे। इसके बाद उस एंटी क्लिप चेक को भी हम लोग उसमें देखते हैं कि एंटी क्लिप चेक इसका सही है कि नहीं। 6 से 6 to 8 ईयर्स जब हमारा हो जाता है तो जितना भी हमारा रिपीट है जो हमने ऊपर में डिस्कस करा है वो सारे रिपीट करेंगे एवं चेक्स को ओवरहॉल करेंगे, कपलर हेड को चेक करेंगे, उसके पास को कोई वियर तो नहीं रह गया है, और रिप्लेस कर देंगे अगर जरूरी समझेंगे कि नहीं यार इसलिए पार्ट जो हमारा ठीक नहीं है तो उसको हम रिप्लेस करेंगे। इस तरह से दूसरे पे हम आते हैं कि मेंटेनेंस जो है सपोर्टिंग डिवाइस का कैसे करते हैं। तो विजुअली चेक करेंगे हम एक्सटर्नल डैमेज को, हाइट इसका चेक करेंगे 187 प्लस 0.5 mm है कि नहीं, बोथ जो उसका बोल्ट के साइड बोल्ट जो है उसके साइड में देखेंगे कोई दिक्कत तो नहीं है, और 16 नट को M16 जो नट है उसको स्पेसिफाइड हाइट पे हम टाइट करेंगे, टाइट करके उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसकी हाइट को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ग्रीस अलाउड है, वियर प्लेट पे हम ग्रीस को डाल सकते हैं, ग्रीस को हम डाल देंगे वियर प्लेट पे, जिससे कि किसी तरह का कोई हमें उस पर कपलर को रन करना है तो हम वियर प्लेट को उसके ऊपर ग्रीस डाल देते हैं कि कपलर अब अच्छे से निगोशिएशन में कपलर के निगोशिएशन में कोई दिक्कत ना आए। और वियर प्लेट के कंडीशन को भी हम लोग चेक करते हैं, अगर ज़्यादा घिसा हुआ है तो उसको हम लोग बदल देते हैं। ये हमारा ट्रिप मेंटेनेंस में भी हम वही करेंगे, मंथली में भी वही इतना ही चीज़ करना है।
हाफ ईयरली में भी इतना ही चीज़ करना है, ईयरली में भी उतना ही चीज़ करना है। मतलब 18 मंथ पे, 36 मंथ पे, 72 मंथ्स पे हमें यही सब चीज़ें करनी होती है। ये हमें सब पढ़ेंगे वैस के बारे में, ये सब चीज़ें करनी है। उसके बाद 6 to 8 ईयर्स में क्या करते हैं, सारे चेक्स जितना भी ऊपर में हमने चेक बताया है, सारे चेक को हम रिपीट करते हैं। उसके बाद कंप्रेशन स्प्रिंग का जो लॉस है, अगर कंप्रेशन स्प्रिंग में किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन में कमी आ रही है तो उसके प्रीलोड को चेक करेंगे और रिप्लेस कर देंगे जब नेसेसरी होगा। मतलब यह है कि भाई अगर किसी वजह से उसके कंप्रेसर में कोई लोड की कोई दिक्कत होगी, लोड उसका स्पेसिफाइड नहीं आता होगा, तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। और कभी भी हम उसको सिंगल रिप्लेस नहीं करेंगे, हमेशा पेयर में ही रिप्लेस करेंगे। ठीक है। और अब लास्ट उसके बाद हमें आता है हमारा ग्राफ गियर, उसका मेंटेनेंस कैसे करना है। तो मंथली और ट्रिप में लूज बोल्ट्स कोई हैं और अगर एक्सटर्नल डैमेज कोई है उसको देखेंगे। लूज बोल्ट्स है तो उसको टाइट कर देंगे, कोई डैमेज अगर है तो भी चेंज हमको करना चाहिए। हाफ ईयरली और ईयरली अगेन 36 और 72 मंथ्स में एवं चेक को रिपीट करेंगे जितना भी चेक्स हमने पहले कहा है। उसके बाद ग्राफ गियर की सीकिंग जो है वो पॉकेट में सही से बैठ रही है कि नहीं वो देखेंगे, कहीं कोई घिसाव तो नहीं आ गया है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ गई है। हमें पता होना चाहिए कि 510 mm का वहाँ पे कोच बगी में हॉलो बना रहता है वाले पोर्शन के लिए, जहाँ पे हम ग्राफ गियर फिक्स करते हैं और पूरे कोच को खींचने की पूरी जो रहती है वो उसी से रहती है। तो हो सकता है कहीं कोई घिसाव ना आ जाए, इसलिए इसको भी हम लोग चेक करते हैं कि सही से उस पॉकेट में वो बैग पा रहा है कि नहीं। बफ फ्लैग का कंडीशन देखेंगे इलास्टोमेरिक पैक के साथ जो इंटैक्ट होता है कि भाई बफ फ्लैग जो है वो सही से लगा है कि नहीं, कहीं कोई घिसाव तो नहीं आ गई है। और ग्रीस को अप्लाई करेंगे, अगर हम जरूरी समझेंगे तो ग्रीस को भी हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। 6 से 8 साल के बीच में सारे जो हमारे चेक्स हैं उसको हम लोग रिपीट करेंगे। उसकी जो प्रीलोड वैल्यू है उसको भी रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस स्प्रिंग कॉलम इफ नेसेसरी, मतलब प्रीलोड वैल्यू जब चेक करेंगे और हमें लगेगा कि नहीं स्प्रिंग का जो कॉलम है उसको बदलना चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग जो है पूरी तरह से बैठ नहीं पा रहा है, घिस गया है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, तो हम उसको चेंज करेंगे स्प्रिंग कॉलम को 7वें से 8वें साल में। और इस तरह से हमारा ग्राफ गियर का मेंटेनेंस हो जाएगा। फिर हम मेंटेनेंस मैनुअल अनकपलिंग डिवाइस का देखेंगे कि 18 मंथ 32 और 62 मंथ और 6 से 8 साल के बीच में क्या क्या करना है। सारे इसका सेम ही है। एक्सटर्नल डैमेज को अब हम देखेंगे कि भाई कोई एक्सटर्नल डैमेज तो नहीं हो गया, कोई लूज बोल्ट्स तो नहीं है। लूज बोल्ट्स वगैरह है तो उसको हम लोग टाइट करेंगे, अप्लाई करेंगे ग्रीस को जहाँ जहाँ पे हमें स्लैगिंग होता है अनकपलिंग और में, वहाँ हम ग्रीस अप्लाई करेंगे कि उसका मूवमेंट स्मूथ रहे और ज़्यादा घिसाव जो है हमारे रॉड पे ना हो। इस तरह से हम उसको, इसलिए हम वहाँ पे ग्रीस को लगाएंगे।
तो ये हमारा मेंटेनेंस जो है इस तरह से पॉसिबल होता है। यहाँ दिस इज द वेरी मच वाइटल पार्ट ऑफ द मेंटेनेंस, visual check for anti-grip protection. Visually check, see how the anti-grip of this CBCs works or not. Then we can put one screwdriver here, and there is one, you can say, lever there. At the same time, I press upward with this screwdriver and press below lock lift assembly with this, and say anyone to pull up this knuckle. If this area, if this item mess with this area, this is impossible to lock to go behind and the knuckle is not come out. This is the all about the anti-grip. It means this anti-grip, this particular CBC has the anti-grip protection. अब आपके सामने आप देखेंगे कि एंटी-ग्रिप टेस्ट कैसे किया जा रहा है। यहाँ पे ये एक स्क्रू ड्राइवर को लेके हमने ऊपर उठाया हुआ है और नीचे से हमने एक दूसरा प्रे बार से एंटी लॉक लिफ्ट लेफ्ट को भी नीचे से प्रेस किया हुआ है। तो इस दोनों के प्रेस करने के बीच में क्या होता है कि जब आप एक ऊपर में स्क्रू ड्राइवर को आपने ऊपर किया हुआ है और नीचे इसको प्रेस किया हुआ है, नीचे से प्रेस किया हुआ है, तो ये जो पोर्शन है वो इस जगह पे आके फंस जाता है। अगर इस जगह पे आके फंस जाएगा तो क्या होगा कि आपका ये जो लॉक है, ये जो लॉक पोर्शन है, अभी फिर से वीडियो चलाऊंगा दिखेगा, ये पीछे की तरफ नहीं जाएगा, जिससे कि ये पीछे की तरफ नहीं जाएगा तो लॉक भी पीछे की तरफ नहीं जाएगा। जब ये दोनों पीछे की तरफ नहीं जाएंगे तो यहाँ पे जगह खाली नहीं होगी, जिससे नकल ओपन नहीं हो पाएगा। उसी को एंटी ग्रिप टेस्ट कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि हमें ध्यान रखना है कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें ये चिपक रहा है कि नहीं, वो देखना है। देखिए फिर से आप इसको, फिर हमने क्या किया है, नीचे से लॉकी लिफ्ट को पे प्रेस कर रहे हैं और ऊपर से एक दूसरे स्क्रू ड्राइवर से उसको नकल के लॉक को ऊपर उठा रहे हैं। ये एक्चुअल पोर्शन है। अभी देखिए आप, ये जो पोर्शन है यहाँ से हम लॉकी लिफ्ट को ऊपर की तरफ धक्का दे रहे हैं और यहाँ से हम लॉक को उठा रहे हैं। लॉक को उठाएंगे तो जो प्रीवियस फिगर में आपको दिखाया था मैंने कि वो पोर्शन जो है अंदर की तरफ नहीं जाएगा, जिससे लॉक पीछे की तरफ नहीं जाएगा, और लॉक पीछे नहीं जाएगा तो ये ओपन नहीं होगा। तो इसी को हम लोग चेक करते हैं गाड़ी जब खड़ी होती है उस समय कि सेम में इसका एंटी ग्रिप जो है वो एक्चुअल काम कर रहा है कि नहीं। देखिए इसको आप फिर से देखिए, ये जो जैसा कि अभी पिछले वीडियो में आपने देखा कि एंटी ग्रिप प्रोटेक्शन कैसे चेक करते हैं। अब जो है इसके आगे वाली स्लाइड में हम लोग चलेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। जब हमारा दोनों नकल जो है
कपल्ड हो जाता है तो ये जो कैरिकल रिसेस है ये विजुअल होना चाहिए बाहर की तरफ से। बाहर की तरफ से हमारा कैरिकल रेसेस जो है दिखता है, अगर ये दिखता है ऐसे और ये दिखता है ऐसे, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो नकल है पूरी तरह से लॉक है और किसी भी कंडीशन में ये खुलेगा नहीं। तो ये हम गाड़ी को जब भी चलने से पहले ये इंश्योर करते हैं कि हमारा कैरिकल रेसेस जो है वो विजिबल है कि नहीं। जब विजिबल हो जाएगा और हमें एक खट से आवाज़ सुनाई पड़ेगी लॉक गिरने की, तो हम समझेंगे कि हमारा नकल जो है पूरी तरह से कपल हो चुका है। तो ये ध्यान देने की बात है, जब भी हम गाड़ी को कपल करें, कपल करने के बाद कैरिकल रेशियो जो है रेसेस जो है ये हमें विजिबल होना चाहिए बाहर से, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा नकल जो है, हमारा जो कपलिंग जो है पूरी तरह से प्रॉपर है। तो अब जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। अब इसमें हम देखेंगे विजुअल चेक करना है वर्टिकल सपोर्ट असेंबली को। तो देखिए ये हम चेक करेंगे कि ये वाला हमारा चारों स्प्रिंग जो है कहीं से क्रैक्स तो नहीं है। अगर मान लिया जाए कि कोई भी एक स्प्रिंग इसमें से क्रैक है, मान लीजिए ये क्रैक हो, चाहे ये क्रैक हो, चाहे ये क्रैक हो, चाहे ये क्रैक हो, कोई भी एक स्प्रिंग क्रैक होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे कि एक स्प्रिंग को चेंज नहीं करेंगे। जब भी चेंज करना होगा तो हम चारों स्प्रिंग को चेंज करेंगे। चारों स्प्रिंग को चेंज करने के पीछे ये लॉजिक है कि अगर हमारा स्प्रिंग चारों चेंज हो जाएगा तो उसकी जो रिफ्लेक्शन होगी सबकी सेम रहेगी। अब जब जैसे कि यहाँ पे ये अगर क्रैक है, हमने इसको चेंज कर दिया, बाकी तीन को छोड़ दिया, तो इसकी रिफ्लेक्शन जो होगी वो अलग होगी और इसकी नए वाले की अलग होगी, जिससे हमारा बैलेंसिंग डिस्टर्ब होगा। तो हम क्या करेंगे, कभी भी नकल को मतलब स्प्रिंग को जब भी चेंज करेंगे तो पेयर में चेंज करेंगे, चारों को एक साथ चेंज करेंगे। ये ध्यान देने की बात है। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पे जो नट है वो लूज तो नहीं है। अगर लूज है तो इसको हम नट को प्रॉपरली टाइट कर देते हैं और इस पूरे स्प्रिंग में कोई टूटा हुआ है तो स्प्रिंग को हम चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम इंश्योर करते हैं कि हमारा जो कॉन्टैक्ट है, इस पे जो एक प्लेट लगी होती है जिस पे CBC हमारा रेस्ट कर रहा होता है, ये कॉन्टैक्ट जो है हमारा प्रॉपर है कि नहीं, सही पे इस पे वो लाई कर रहा है कि नहीं, वो भी हमें बहुत जरूरी होता है चेक करना कि हमारा CBC इस पे रेस्ट कर रहा है कि नहीं। उसके बाद कपलर हाइट को मेंटेन करते हैं हम। यहाँ पे जो बोल्ट रहता है उसको खोल के या टाइट करके हम इसको इसके हाइट को मेंटेन करते हैं 1090 प्लस माइनस प्लस 15 माइनस 5 जो रहेगा हमारा रेल लेवल से, इसको हम मेंटेन करते हैं उस बोल्ट के थ्रू। बोल्ट से हम मेंटेन कर लेते हैं। मेंटेन करने के बाद तब इंश्योर करते हैं कि नहीं इसका जो है हमारा रेल लेवल से इतना ऊंचाई इसकी है कि नहीं। उसके बाद ये जो बोल्ट लगा है ये सपोर्टिंग डिवाइस का बोल्ट होता है जो कि बॉडी के साथ अटैच होता है, जिसको हम लगाते हैं। ये इसमें भी बोल्ट का लूजनिंग बोल्ट नहीं होना चाहिए, बोल्ट को पूरी तरह से टाइट करेंगे। और अगर किसी वजह से बोल्ट लूज हो रहा है या कुछ हो रहा है तो हम बोल्ट को टाइट करेंगे, और अगर प्ले आ गया है या फिर स्लिप कर रहा है तो फिर से इसमें होल करेंगे, नया होल करके, और हम इस बोल्ट को पूरी तरह से टाइट करने के बाद इंश्योर करते हैं, तभी गाड़ी को हम फेंक देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि विजुअल चेक करना है हमें मैनुअल अनकपलिंग डिवाइस का। इसमें बहुत सारे आपको एरोज दिखाई पड़ रहे हो। यहाँ पे कोई बेंड तो नहीं आ गया माउंटिंग में, ये चेक करना है। यहाँ पे तो कोई बेंड नहीं आ गया है, ये भी चेक कर लेते हैं। इस जो अनकपलिंग का जो रॉड है इसमें तो कोई बेंड नहीं है। जो परमिसिबल बेंड है उसके अलावा कोई बेंड हो तो भी हम इसको रिप्लेस करेंगे और इसके अलाइनमेंट को चेक करेंगे, तभी हमारी
प्रॉपर अनकपलिंग पॉसिबल रहती है। उसके बाद इस रोटरी बार को जो होता है, हम हैंडल को इसको स्लॉट में देखते हैं कि स्लॉट में ये है कि नहीं, स्लॉट इसका चेक करते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास स्क्रूइंग है, स्क्रूइंग नट होता है, इसको हम टाइट कर देते हैं। इसको टाइट करने से क्या रहता है कि हम अनकपलिंग जो है रास्ते में नहीं हो पाए, इसके लिए हम स्क्रू को टाइट कर देते हैं। जब हम टाइट कर देंगे तो ये जो रॉड है ये उठेगा नहीं, किसी भी कंडीशन में ये रॉड उठेगा नहीं, इसलिए हम इसको टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद सिक्योर कर लेते हैं कि हाँ भाई ये टाइट हो गया। तो अब जो है रास्ते में पहले तो हम कैरिकल गेसेस देख लिए, उसके इसको टाइट कर लिए, तो हमें पता चल गया कि मेरा टाइट हो गया। तो हमारा जो कपलिंग है वो मेरा प्रॉपर है। अब जो है आगे ये कहीं खुलेगा नहीं। ये इस तरह से हम इसको चेक करके इंश्योर कर देते हैं और विजुअल चेक कर लेते हैं, और उसके बाद तब इस गाड़ी को हम आगे फिट देते हैं। अब देखिए ग्राफ गियर और बैलेंस ग्राफ गियर को भी चेक करते हैं। कहीं चेक द ब्रेकर्स ऑफ ग्राफ गियर और मेन बोर्ड जो हमारा पीछे की तरफ रहता है उसमें देखते हैं कि कहीं कोई ब्रेकर्स तो नहीं है। मेन बोर्ड में ब्रेकर्स है तो उस बोर्ड को चेंज करके नया लगाते हैं। लूजनिंग ऑफ द लॉक, ये जो हमारा बोल्ट है जो नीचे से आप देख पा रहे हैं, ये बोल्ट हमारा उसका रहता है ग्राफ गियर के नीचे जो हम प्लेट लगाते हैं उसका नट को देखते हैं कि नहीं ये वेस्ट ब्लॉक वगैरह इसमें बोल्ट में टाइट है कि नहीं, और नहीं टाइट है तो इसको पूरी तरह से हम टाइट कर देते हैं। कोई डैमेज कोई परमिसिबल नहीं होता है इसमें। अब हम कहते हैं ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग के लिए हम मेजर डिसमाउंट करने के लिए मेजर कंपोनेंट को हम डिसमाउंट करके फिर से माउंट करते हैं। डिसमाउंट कपलर हेड फ्रॉम कोच अंडर फ्रेम, कपलर हेड जो है उसको कोच के अंडर फ्रेम से डिसमाउंट करते हैं। डिसमाउंट करते हैं ग्राफ गियर को, जो बैलेंस ग्राफ गियर भी रहता है या ग्राफ गियर रहता है उसको भी हम डिसमाउंट करते हैं। डिसमाउंट करने की क्या प्रक्रिया है वो हमारा अगले स्लाइड में पता चलेगा। डिसमाउंट कपलर हेड फ्रॉम कोच अंडर फ्रेम हम कैसे करते हैं डिसमाउंट, ये इसमें दिखाया गया। रिमूव फ्रंट कैरियर प्लेट बाय लूजनिंग M16 नट बोल्ट। M16 का जो नट बोल्ट है जो नीचे लगा हुआ है कैरियर प्लेट में, जो कि मैंने पहले डिस्कस करा था, उसमें हम उसको लूज करते हैं। एक एंटी रस्ट स्प्रे होता है ऑयल, वो 80 mm पिन और सैलिंग ब्लॉक जो कि पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये यहाँ पे हम स्प्रे कर देते हैं। स्प्रे करने से क्या होता है, कोई भी रस्टिंग अगर है किसी वजह से कोई जंग लगा हुआ है तो नट उसको खोलने में दिक्कत ना हो, इसके लिए हम ये करते हैं। उसके बाद मेन पिन को पुल करने के लिए हमने एक डिवाइस बनाया हुआ है, जिसमें हम 2 बोल्ट इस तरह से लगाते हैं। लगा करके 80 mm का जो हेडलेस पिन है उसके नीचे लगाने के बाद इसको हम धीरे धीरे टाइट करते हैं। तो जैसे जैसे टाइट होता है और पिन में एक होल होता है उसके बीच में भी हम एक बोल्ट को टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद इसको धीरे धीरे हम इसको टाइट करते हैं तो धीरे धीरे खुलते हुए नीचे की तरफ आता है। नीचे तरफ आने के बाद हम एक टेबल रखते हैं, टेबल पे कपलर हेड को रख देते हैं और रखने के बाद ऊपर नीचे 2-3 बार हिलाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो पिन है वो नीचे गिर जाता है। गिरने के बाद हमारा कपलर हेड बाहर की तरफ निकल जाएगा और ग्राफ गियर नीचे गिर जाता है। नीचे गिर जाने के बाद कपलर हेड को हम चेंज कर देते हैं और ग्राफ गियर को भी हम नए से रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करने के बाद हम इसको वापस गाड़ी में टाइट कर देते हैं, जिससे हमारा मतलब वो चेंज हो जाता है और फिर से हमारी गाड़ी नई उसमें नए कपलर हेड और नए ग्राफ गियर के साथ चलने के लिए तैयार रहती है। उसके बाद क्या है, रियर प्लेट का जो वो ये तो बैलेंस ग्राफ गियर का जो नट है उसको लूज करते हैं। जब बैलेंस ग्राफ गियर कैसे गिराते हैं उसके बारे में
हाइड्रोलिक कैमरे का ट्रॉली जो है ग्राफ के सोल पिक्चर जो दिखाया गया है उस हिसाब से हम उसको खोल लेते हैं। तो इसमें क्या रहता है पूरा ये हमारा जो बेवगी जी है इसमें वेज लगा होता है, तो वेज को ही हम घुमा देते हैं, वेज को हम लूज कर देते हैं तो ग्राफ केक जो है थोड़ा सा चिपक जाता है। चिपकने के बाद नीचे आराम से निकल जाता है, निकलने के बाद हम उसको चेंज कर पाते हैं। यही जो है पूरी तरह से आपको थोड़ा बहुत पूरी तरह क्या क्या हमें करना है वो हमने आपको इस पूरे पीपीके में समझाया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पूरे प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से गौर से सुना है और आशा करते हैं कि जरूर आप इससे कुछ ना कुछ लाभ आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।